Hello and welcome to CVR News Network. You're watching CVR English, and these are the details of the Inside News, and I'm Sandeep. President Draupadi Murmu addressed a large gathering at the Uttarakhand State Police Line Maidan in Dehradun on the occasion of the 11th International Day of Yoga, highlighting yoga's role in fostering inner peace and social harmony. She emphasized its relevance in today's fast-paced world. The President praised India's ancient wisdom and the global embrace of the yoga as a tool for holistic well-being. Her participation marked the culmination of the three-day visit to Uttarakhand, during which she also inaugurated several public facilities at Rashtrapati Niketan. उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, उपस्थित देवियों, स्वजनों और बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। उत्तराखंड का क्षेत्र योग और अध्यात्म जैसे भारतीय परंपराओं का प्रमुख केंद्र रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप सब यहाँ पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी को और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगाभ्यास कर रहे सभी प्रतिभागियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरी कामना है कि योग के प्रयोग से समस्त विश्व के निवासी स्वस्थ और प्रसन्न रहे। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव असाधारण समर्थन के साथ प्रेरित किया है। अपने संकल्प ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्पष्ट किया था कि योगाभ्यास पूरी विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। सन 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अधिकांश देश में योगाभ्यास के आयोजन किए जाता है। योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। योग की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता के अनेक प्रभावशाली उदाहरण हैं। इस वर्ष अप्रैल में कुवैत की शेखा ओली जावर अल सबाह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो एक योग अभ्यासी है जो अपने प्रयासों से संस्कृतियों और लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। योग का अर्थ जोड़ना। योग का अभ्यास व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना है और स्वस्थ बनाता है। इसी प्रकार ये एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति से, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से और एक देश को दूसरे देश से जोड़ना काम भी कर रहा है। इसी उद्देश्य का ध्यान में रखते हुए 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य रखा गया है। भारत की पहल पर योग के प्रति विश्व समुदाय का सम्मान बढ़ा है और दुनिया भर के लोग इससे लाभान्वित हो रही है। योग उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, उपस्थित देवियों, स्वजनों और बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर External Affairs Minister Jaishankar joined the dignitaries from diplomatic missions across the world in Delhi to mark International Yoga Day 2025, observed under the theme Yoga for One Earth, One Health. The event showcased yoga's global resonance and India's leadership in promoting holistic well-being. The session included guided asanas and breathing exercises, with participants embracing the spirit of mindfulness and unity. The gathering reflected yoga's role in fostering cross-cultural harmony and shared health goals on a global platform. With friends and diplomatic missions from across the world, this year we celebrate under the theme Yoga for One Earth, One Health, a powerful call to care not only for ourselves but for each other and the planet we share.
From nurturing individual well-being to inspiring systemic change, India's evolving yoga landscape is shaping a healthier, more harmonious world. Ladies and gentlemen, we are also honored to have amidst us 3 distinguished yoga practitioners from Argentina, Singapore, and Kazakhstan. They are here as part of a 17-member delegation from 15 countries to participate in the Yog Bandhan initiative to celebrate the 10th anniversary of the International Day of Yoga. It is inspiring that the number of yoga events that are being held worldwide has doubled this year from last year. And this time, there are more than 2,000 yoga events held in over 1,300 locations in 191 countries, ladies and gentlemen, of the world. So every country in the world is celebrating the International Day of Yoga with us. And now, we begin with the Common Yoga Protocol session, 45 minutes of mindfulness, movement, and inner harmony. May this morning energize your day and deepen our collective commitment to health and balance. I now invite our yoga instructor to please lead us. Celebration. Union Minister and BJP President JP Nadda took part in the International Yoga Day 2025 celebrations at Kartavya Path in New Delhi. Addressing the gathering, he highlighted yoga's role in maintaining physical fitness, mental well-being, and fostering positivity. He described yoga as a powerful medium to connect the soul with the divine and urged citizens to incorporate it to their daily lives for a healthier lifestyle. श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए और हल्का विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। सभी आसनों का एक सामान्य नियम यह है कि उसके फाइनल पोज या अंतिम स्थिति में श्वास की गति सामान्य रखते हैं और कुछ देर ठहरने या स्थिर रहने का अभ्यास करते हैं। पहला आसन ताड़ासन। जिनके घुटने में दर्द हो वे एड़ियां नहीं उठाएंगे। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाइए। पैरेलल गैप। योग दिवस पर कर्तव्य पथ पर हो रहे इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय आचार्य प्रज्ञा सागर मुनि जी, हमारे आयुष विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी मैडम कविता जैन जी, मेरे साथी और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन हमारे कुलदीप चहल जी, और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में योग प्रेमी। और हम सबको पता है कि आज दुनिया में, देश में लाखों स्थान पर योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास हमारे सभी लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको आज के दिन योग दिवस पर मेरी ओर से और हम सब की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबको मालूम है कि योग दिवस की कल्पना और योग दिवस दुनिया में मनाया जाए, इसकी शुरुआत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इस बात को कहा था कि योग दिवस मनाया जाना चाहिए, और जिसको बहुतायत देश ने, लगभग 170 देशों से ज़्यादा देशों ने इसका समर्थन किया था। और दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये घोषणा की कि 21 जून हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें समझने वाली बात यह है कि जिस प्रस्ताव को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रखा, उसको यूनाइटेड नेशंस ने सर्वसम्मति से पारित करके 2015 से यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ हुआ है।
और हम देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में आज ये 10 साल पूरे हो रहे हैं, 11वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस 10 वर्षों में न ही सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में योग चेतना और योग के प्रति एक सद्भाव के वातावरण के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा श्वास भरते हुए पहली जैसी स्थिति में आ जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए और हल्का विश्राम कीजिए। अब हम celebrations in Dona Paula, joined by the Chief Secretary, senior officials, school students and heads of the departments. He highlighted that yoga sessions were held at over 15,000 locations across the state, with enthusiastic participation from ministers, MLAs and students, expressing gratitude to all contributors. CM Sawant echoed Prime Minister Modi's message that yoga is India's gift to the world and urged everyone to make yoga a part of their daily routine. सभी आसनों का एक सामान्य नियम यह है 4 rounds 1 2 3 and 4. Let's practice. Look backwards on the right. Place the left palm over the right shoulder. Left palm over the right shoulder. Stretch backwards as much as possible. Inhale, come back to the initial position. Exhale, twist towards the left. Look backwards. Place the right palm over the left shoulder. Inhale. नेशनल योगा डे मनाने के लिए इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो स्टेट का फंक्शन वहाँ पे था, मेरे साथ में पूरे चीफ सेक्रेटरीज, ऑल द सेक्रेटरीज, स्कूल के बच्चे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद थे। गोवा में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 15,000 जगह पे हमने 11th इंटरनेशनल योगा डे मनाया। सभी जगह पे हमारे मिनिस्टर्स, MLA और सभी स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट हो गए। उन सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वन अर्थ वन योगा इस कंसेप्ट के अंतर्गत, वन अर्थ वन हेल्थ इस कंसेप्ट के अंतर्गत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे वर्ल्ड के लिए इस योगा इज द गिफ्ट फॉर द वर्ल्ड ये मैसेज जो दिया है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। रोज योगा फॉलो करें और द क्लीन इंडिया, फिट इंडिया की मैसेज पूरे देश भर में माननीय मोदी जी ने दी है। इसलिए फिर एक बार मैं गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मुझे लगता है कि 11th इंटरनेशनल योगा डे फिर एक बार सक्सेसफुली वी हैव परफॉर्म द योगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसलिए फिर एक बार मैं पूरे इस दिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इंटरनेशनल योगा डे मनाने के लिए इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो स्टेट का फंक्शन यहाँ पे था, मेरे साथ में पूरे Union Minister Piyush Goyal, speaking at the International Yoga Day 2025 event at the Khaneri Caves in Mumbai, praised the Prime Minister Narendra Modi's leadership in taking yoga to every home and city across the globe. He described India as an engine of development, guiding the world to new heights, and noted the growing international admiration for PM Modi and India. Goyal extended his congratulations to the Prime Minister on the occasion of the 11th International Yoga Day, highlighting yoga's role in promoting global well-being. पूरे विश्व में जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग घर घर तक, शहर शहर तक पहुंचा है, ये हम सबके लिए बड़े आनंद की बात है। हम सबके लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का पुरातन, भारत का अपना देन योग आज विश्व के स्वास्थ्य की चिंता करता है। योग दिवस पर हम आज पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं कि भारत के पास जो ताकत है, भारत के पास जो अपनी खुद की संस्कृति है, भारत एक प्रकार से पूरे विश्व को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का एक इंजन ऑफ Andhra Pradesh Chief Minister